Hi guys, how is it going on? I welcome each one of you in my today's video. I am your English trainer दीपक अरोड़ा. आज की वीडियो में आपके लेके आया हूँ 6 amazing advanced words because I personally feel that words play a very important role in our day-to-day communication. जब भी कोई आपके सामने कोई एक एडवांस वर्ड का यूज़ करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि इसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी क्यों है और कैसी है। ये सब बातें हमारे दिमाग में इसलिए आती हैं क्योंकि हम उन लोगों को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी दूसरों की तरह एडवांस वर्ड से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समवेयर यू फील लाइक दैट कि आपकी जो वोकेबलरी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि दूसरे इंडिविजुअल्स की है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी वोकेबलरी एनरिच हो, इम्प्रूव हो। इसके लिए आज की वीडियो में आपके लेके आया हूँ 6 अमेजिंग एडवांस वर्ड्स। मैं 6 के इंस्टेड ऑफ 6 वर्ड्स आई कैन आल्सो ब्रिंग मोर वर्ड्स, बट द थिंग इज दिस, अकॉर्डिंग टू सर्वे, इफ़ यू memorize or learn 5 words in a day, then it means that in a month you will have 150 words. So it means that you don't need to go for at a very high speed when it comes to improving your vocabulary. You can just learn 3 words in a day, 4 words in a day, or 5 words in a day, but you have to learn the strategy and the tactics that how to use these words. Apart from this, I have just in front of you, like, given the word, then meaning, and then example. These example will make you understand clearly कि कहाँ पे इन words का आपको use करना है. Now, without wasting time, let's get started. Number 1 word, which is my favorite one, ballistic. Ballistic. The correct pronunciation of this word is ballistic. Now, where to use this word? I have just given the definition of this word. This word is used when someone becomes angry and upset. जब कोई इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कोई बात उसको ज़्यादा परेशान कर देती है, और इसकी जगह हम देयर आर सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स विच यू कैन यूज़ इट. इन सिंपल इंग्लिश यू कैन से एंग्री, you can say annoyed, you can say upset. But ballistic is such a word which is being used, जो आज की एक मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं. Now just see the example. The example says he gets ballistic if someone does not listen to him. Now understand the Hindi translation of this sentence. Like वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है जब कोई उसको नहीं सुनता है. तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात को कोई नहीं सुने या जब आपकी बात को कोई नहीं मानता है और आपको लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम टू शो योर रिएक्शन, तो अपना रिएक्शन दिखाने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और देन अदर इंडिविजुअल विल say like this that he is really ballistic. So this way you will just understand and learn new word which is ballistic. Let's move on the second word. Second word is something really different, very new, which we call like this, brash. The correct pronunciation of this word is brash. Now what is the meaning of this brash? Brash means हम इस वर्ड का वहाँ यूज़ करते हैं जो भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हैं. वेल आई वुड से दैट कॉन्फिडेंस इज मेडिसिन, बट ओवर कॉन्फिडेंस is not good actually. If you show overconfidence, like among people and wherever you are going, you will lose your personality. So you have to stay humble and grounded. So I was saying like that, somebody जो अपना कॉन्फिडेंस को ज़्यादा दिखाता हो और दूसरों के लिए लिटिल रिस्पेक्ट रखता हो, तो वहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं which is brash. Now see the example. The example says I avoid talking to him cause he is brash. I avoid talking to him cause he is brash. Now the Hindi translation of this sentence is मैं उससे बात करने से बचता हूँ क्योंकि वो एक ब्रैश है. मैं उससे बातें करने से बचता हूँ क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और वो दूसरों के लिए एक लिटिल रिस्पेक्ट रखता है. मीन्स ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड पर्सन, बट ही डजंट हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. तो यहाँ पर अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज़ करना हो ये वर्ड, सो यू कैन से दैट ही इज़ अ ब्रैश वन और शी इज़ अ ब्रैश वन. Pronunciation of this word is muffle. Muffle. Where to use this word? Now this word you have to just keep one thing in mind. हम इस वर्ड का कहाँ यूज़ करते हैं? इस वर्ड का आप वहाँ यूज़ करेंगे particularly विंट्री सीजन में, जब विंट्री डेज चल रहे होते हैं और हमसे कोई कहता है कि गर्म कपड़े पहन लीजिए, या नाइट में जब ऐसा होता है कि
क्विल्ट जो रजाई होती है, किसी को उड़ा दीजिए किसी के ऊपर, या बेडशीट को उड़ा देना, तो वहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं मफल. इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल सेज माई मदर आस्क्ड मी टू मफल अप अगेंस्ट द कोल्ड. मेरी मम्मा ने मुझसे कहा जस्ट मफल अप योर सेल्फ, मीन्स गर्म कपड़े पहन लीजिए अगेंस्ट द कोल्ड. So this is a very beautiful word. Next time, if you have to use this word, so just use this word muffle. Now move on to next one, which is grumble. Grumble. The correct pronunciation of this word is grumble. Where to use this word? Now grumble is a word like we know a very simple and basic word of this grumble which we call about complain. आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा ये कहते हुए complain करना. Now this word like you can complain can replace this word grumble, which means शिकायत करना बहुत ही एक गुस्से की आवाज़ में, एक गुस्से वाली टोन में. जब आपको लगता है कि कोई भी थिंग्स, कोई भी काम आपके अगेंस्ट हो रहा है, then you just become what angry and you start taking out your frustration on that person. Now see the example. Stop grumbling. कंप्लेन करना बंद करें, शिकायत करना बंद करें, एंड ट्राई टू स्टे काम, और बिल्कुल शांत होने की कोशिश करें. इज इट नॉट अ ब्यूटीफुल वर्ड? सो नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव टू यूज व्हाट शिकायत करना, डोंट यूज कंप्लेन, यूज दिस वर्ड ग्रम्बल. नेक्स्ट वर्ड इज हैमर्ड. Hammered. Now this is another what beautiful word. I will say that when some people are, I will say not some people, but most of the people, like when you just go to party or like somewhere with your friends, so some people are in the habit of getting alcoholic. So जब आप या कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेता है और आपके फ्रेंड्स आपसे कहते हैं कि तुमने आज बहुत ज़्यादा पी ली है कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो. सो जस्ट ज़्यादा शराब पीने के लिए या ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वन वर्ड ड्रंक, समथिंग लाइक दैट. So instead of this word, you may use this new word hammered. Hammered. This is another modern word which most of the people use in today's time. Let's see the example. On the weekend he gets hammered. On the weekend he gets hammered. वह बहुत ज़्यादा पीता है जब वीकेंड की बात आती है. It means that Monday to Saturday he works, but when it comes to Sunday, so just ही गेट्स हैमर्ड. वो इतना पीता है जस्ट टू गेट लेड बैक, रिलैक्स होने के लिए, और जस्ट टू गिव व्हाट पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति के लिए, और समथिंग लाइक दैट. सम पीपल गो फॉर ड्रिंक व्हाट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स. इट्स वेरीज कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिविजुअल कहाँ पी रहा है, कैसे पी रहा है, क्यों पी रहा है. तो जस्ट पीने के लिए, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे हैमर्ड. द लास्ट वर्ड इज डेड बीट. डेड बीट. वी यूज़ दिस वर्ड व्हेन समबडी इज़ कम्प्लीटली टायर्ड. जब कोई भी इंडिविजुअल, या आप भी इसमें हो सकते हैं, जब बिल्कुल आप थक जाते हैं अपने डे टू डे वर्क से. अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपने स्टडीज़ की वजह से, or like somebody who is housewife, somebody who is work somewhere, or they can say like this. जब बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं and you start complaining कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, then you use this word dead beat. Let's see the example. After coming from school, स्कूल से आने के बाद I took some rest, मैंने थोड़ा सा आराम लिया, cause I was dead beat. यहाँ पर cause मैंने यूज़ किया है instead of बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, थक के इतना चूर हो गया था कि मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर लूँ. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया पहले मैं कुछ आराम करूँगा, उसके बाद अपनी थकान जब मेरी दूर हो जाएगी देन आई विल थिंक समथिंग एल्स, तब मैं कुछ और सोचूंगा. सो इन दिस वीडियो लाइक दीज आर 6 अमेजिंग एडवांस वर्ड, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड गो फॉर दीज मीनिंग्स. इन वर्ड्स को आप इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करें, एंड आई पर्सनली फील दैट दीज वर्ड्स will go a long way to improve your common skills. If you like this video, don't forget to subscribe and like it. In my next video, I will come up with another amazing words. Till then, bye bye. Thank you so much.